As you can see, today's topic is how to find atomic weight using the method of titration. So I'll pick up one molecule, and in that molecule there will be one known atom to you, and you will know what is its atomic weight, but I will tell you how to calculate it and verify whether the atomic weight is the same or not. See, in practical chemistry, if we learn the method of setting up the apparatus, the procedure, the calculation which are just given in your book, then you may not be able to apply the practical in your life. Okay, but if you learn it to apply in various situations, you can do a number of things using these methods. These practical chemistry things are not ordinary concepts. These are going to become your professional skills very soon. Okay, now those who do the practicals just for the sake of doing it and for getting marks, they are not able to use it in their life. So without telling you much about all this, because it is up to you how much you are going to study chemistry in your life and how much you are interested, it is my duty to tell you inside out everything about titration. See, if you have seen my previous video in titration, I had told you what do we do in titration. In titration, we find out the strength of any solution or concentration of any solution which is not known to us by reacting it with a standard solution whose volume and strength is known to us. Then we relate it with the stoichiometry of the reaction. Then we formulate a working formula. Using that working formula, we find the molarity or the strength. Okay. So, in order to tell you about how to find the atomic weight of any atom in a molecule, I will pick up the molecule which is there in your syllabus. In your syllabus, there are molecules like potassium permanganate, potassium dichromate. There are molecules like potassium chromate even, potassium manganate even. But these are not oxidizing agents. These two are oxidizing agents, okay? So, it is not that only potassium can form potassium permanganate. Sodium can also form sodium permanganate. What else is there in the group 1? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So any S block element can form this permanganate. Let you have been given a permanganate in which it is not known that which S block element is given as the cation. Okay. So let the unknown cation or the cation whose mass is not known be equal to A. Then formula for its permanganate will be just like KMnO4, it will become AMnO4. Okay, where A is any hypothetical element. We don't know which element is this. It can be sodium also, it can be potassium also. Alright, it can be any other element of the S block element. Now we have to find out what is its atomic weight, and if we find out its atomic weight, we will be able to find out that which element is this. Like if we get 23, we would say that it was sodium. If we get somewhere around 39.1 or 39 or 39.09, then we will say it is potassium. Okay. So for this, what we will require? We will require standard solution of
more salt. What is more salt? More salt is nothing but ferrous sulfate dot ammonium sulfate with 6 water of crystallization. It contains Fe2 plus, and in presence of the permanganate ion it converts into Fe3 plus. So the reaction which takes place between MnO4 minus and Fe2 plus, this does not oxidize, this does not oxidize, this does not oxidize. What oxidizes is Fe2 plus. Okay, this is the actor of the movie. Okay, if it is a movie, then this Fe2 plus is the hero here. Okay, and MnO4 is the villain. Now they will interact. What will happen? विलेन का क्या होता है? विलेन का हाल बुरा होता है. देखो कम हो गए, पहले +7 था, अब ये +2 हो जाएगा, MnSO4 बन जाएगा. और हीरो का क्या होता है? हीरो अमीर बन जाता है. Fe3 plus ऑक्सीडाइज हो गया. Now we'll balance it. How we will balance? Let us take half reaction method. Do half reaction method, easy लगता है थोड़ा सा. MnO4 से बना Mn2 प्लस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. +7 को +2 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, तो ये +2 हो गया. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 पानी के मॉलिक्यूल डालेंगे. ठीक है, 4 पानी के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन हो गए. और ये एसिडिक मीडियम रिएक्शन था, इसलिए हमारे पास बहुत सारे H+ हैं, तो H+ के लिए सोचना नहीं है, 8H+ डाल दिया. ये पार्ट तो बैलेंस हो गया. नेक्स्ट इज Fe2 प्लस से बना Fe3 प्लस. Fe3 प्लस को Fe2 प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? नील होना चाहिए. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 इलेक्ट्रॉन होके कट जाए. दिस विल बिकम 5 Fe2 प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन. इसके 5 इलेक्ट्रॉन किधर गए? यहाँ पे, और इसके यहाँ पे ये कट गए. सो द रिएक्शन इज MnO4 माइनस, इसके साथ चाहे कोई भी हो, इसके साथ K प्लस हो, Na+ हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है. रिएक्शन तो इसका हो रहा है. प्लस 5 Fe2 प्लस is becoming 5 Fe3 प्लस और इसका 8H+ यहाँ पे लिखेंगे. कैलकुलेशन में वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी. एंड Mn2 प्लस दिस साइड एंड 4H2O. Just for the sake of space, I am erasing this part. So we will require the stoichiometry relation of MnO4 minus corresponds to 1 mole of MnO4 minus corresponds to 5 mole of Fe2 plus. Okay, this is the key. This is the key concept. यही इस गुत्थी का चाबी है ना? इस प्रॉब्लम का चाबी इसी जगह पर है. अब क्या चाहिए हमें? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका चाहिए? मोर सॉल्ट का चाहिए. स्टैंडर्ड कौन नहीं है? MnO4 नहीं है. नॉन स्टैंडर्ड इज MnO4. इट इज नॉट स्टैंडर्ड. इसी का स्ट्रेंथ निकालना है. एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच वी विल टेक इज मोर सॉल्ट. दैट मीन्स अमोनियम सल्फेट के साथ डबल सॉल्ट FeSO4 प्लस 6H2O. स्टैंडर्ड कह दिया इसको, तो कुछ ना कुछ तो इसका मोलैरिटी देना पड़ेगा. M/20 कर लेते हैं इसको, है ना? से बना लेंगे. वी कैन प्रिपेयर इट. इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 4.9 ग्राम मोर सॉल्ट
इन 250 ml में डिजोल्व कर देंगे तो m/20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लैब में बना बनाया मिल जाता है या फिर आप बना भी सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो 1000 में कितना लगेगा, जितना भी 1000 में लगेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 250 में उसका आधा लगेगा, मतलब 1/4 लगेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और उसका फिर 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 1 मोलर नहीं चाहिए, m/20 चाहिए। तो एक बार हम 4 से डिवाइड करेंगे और एक बार हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी इसका मोर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास है वो 4.9 आ जाएगा फॉर एवरी 250 ml। हमें 1000 ml बना के क्या बर्बाद नहीं करना है ना, तो कम से कम बना के हम टेस्ट करेंगे। तो दिस विल बी गिवन टू यू, इट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इट इज नॉट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब क्या करते हैं, इसमें से 20 ml पीपेट आउट करते हैं। पीपेट आउट का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, पहले नहीं देखा तो अब देख लो, यू कैन रिप्ले फाइंड। इट इज टाइट्रेशन फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क। पीपेट थ्रू पीपेट, पीपेट कैसा दिखता है, पीपेट कैसा दिखता है, एक लंबा सा पेन की तरह, है ना, ऐसे ऐसे। यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, यहाँ पे भी एक बल्ब रहता है, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन ड्रॉप द सॉल्यूशन। 20 ml डाल दिया इसमें, तो मोलारिटी पता है और वॉल्यूम भी पता है, इसके कितने मोल्स इसके अंदर है तो पता है हमें। ऑलराइट, नाउ अब रिएक्ट करवाएंगे इसको अननोन सैंपल ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन से, लेकिन उससे पहले हमें एसिडिक मीडियम करना पड़ेगा, बताया था ना, X+ डालना पड़ेगा। तो 20 ml मतलब लगभग एक टेस्ट ट्यूब भर के डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, एसिडिफाई हो गया सॉल्यूशन। अब FeSO4 जो है ये अमोनियम सल्फेट से टूट के अलग हो गया, Fe2+ अलग से तैरने लगा है सॉल्यूशन में। अब इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करेंगे, KMnO4 डालेंगे। KMnO4 डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोनिकल फ्लास्क लेंगे। अगर ये ऑक्सलेट आयन होता तो 6 डिग्री तक हीट करना पड़ता, क्योंकि आयनिक सॉल्ट है इसे हीट नहीं करना पड़ रहा। या ब्यूरेट डालेंगे इसके अंदर, ब्यूरेट। यहाँ पे एक नलका बना हुआ रहता है, टोटी, टोटी बोलते हैं ना बहुत कोई। कितना ले लें, 100 ml है ना, ये पूरा 100 ml कैपेसिटी का ले लेते हैं, यहां तक 100 ml। एयर बबल आने नहीं देते, है ना, ये पूरा नहीं है, यहाँ पॉइंट तक क्या 100 ml होगा, ठीक है, यहाँ तक पूरा रहेगा तो 100 ml होगा। और एक भी ड्रॉप यहाँ पे लटका हुआ ना रहे ऐसे, अब बीच में कहीं पे भी बुलबुले नहीं रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, KMnO4 को अंदर डाल के ऐसे ऐसे करके रिंस कर लेते हैं। एक बार टोटा को खोल के उसको रैपिडली गिरने देते हैं सॉल्यूशन को, तो एयर बबल सारा निकल जाता है। फिर इसको एयर बबल फ्री करने के बाद इसके जो KMnO4 सॉल्यूशन है इसको इसके अंदर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद जब सारा MnO4 MnO2 बन जाएगा, Mn2+ बन जाएगा, है ना, सारा MnO4, जब ये MnO4 माइनस Mn2+ बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और ये पिंक कलर तो है ही, तो जैसे ही ये कलरलेस हो जाएगा दैट मीन्स कि जितने भी Fe2+ थे वो Fe2+ अब Fe3+ हो चुके हैं। अब KMnO4 को रिड्यूस करने के लिए Fe2+ नहीं बचा, Fe3+ हो गए सभी। अब कोई भी अगर 1/4 ड्रॉप भी एक्सेस यहाँ पे आ जाए सॉल्यूशन में तो एक फेंट पिंक कलर देगा, फेंट पिंक कलर। दिस फेंट पिंक कलर इज द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। नाउ ये जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं VKMnO4। ऐसा हम 5 टाइम्स ऑब्जर्व करेंगे,
5 टाइम्स ऑब्जर्व करने के बाद एटलीस्ट 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेंगे। तो जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ पे इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट, यहाँ पे फाइनल रीडिंग, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। ये सभी प्रोसेस एक ही जैसा है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अनुसार हम एलजेब्रा यूज करते हैं या कोई और मैथमेटिक्स का टूल यूज करते हैं। तो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5। इनिशियल रीडिंग मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है। फाइनल रीडिंग मैंने किया नहीं एक्सपेरिमेंट, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब कुछ भी नहीं लिखूंगा, उसके बाद जो आया वो कुछ भी नहीं लिखूंगा, फिर कुछ भी नहीं लिखूंगा, जो आया वो कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, लेट इट बी x, ठीक है। जब आप करेंगे इसको तो आपका x कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। ये x कोई वैल्यू आएगा, ये जो वॉल्यूम कंज्यूम होगा वो कोई x वैल्यू आएगा। सो नाउ वी नो दैट द वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड, लेट इट बी इक्वल टू x। जो अब मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K बी इक्वल टू A। So molecular weight of A plus molecular weight of KMnO4, only MnO4, minus should be equal to number of moles। कैसे निकालते हैं, number of moles is equal to given weight और sample weight by molar weight। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स है, मोलरिटी है ना, इन 1000 ml। सो मॉलिक्यूलर वेट शुड बी इक्वल टू सैंपल वेट, व्हाट एवर सैंपल वेट विल बी देयर, जो कि हमने बनाया डिसॉल्व करके KMnO4 को, सैंपल वेट डिवाइडेड बाय मोलरिटी। इतना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मच विल बी इक्वल टू 119 ग्राम पर मोल। और ये A, अगर सैंपल वेट हमारा हो, मान लेते हैं कि सैंपल वेट जो दिया गया है वो हो 1.6 ग्राम, मोलैरिटी कितना निकला अपना 5x। अब हमारे पास जो ये वर्किंग फार्मूला है, इस वर्किंग फार्मूला से हम बैक कैलकुलेट करके रीडिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम x का वैल्यू जो है हम बैक कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट हियर। बैक कैलकुलेट करके x के वैल्यू को यहाँ पुट करके हम यहाँ पे a का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। So this was what? This was molarity of KMnO4. This was volume of KMnO4. This was molarity of more salt. This was volume of more salt. This is now this and this gets cancelled. So molarity of KMnO4 comes out to be 1 by 5x. Now what is x? You might be remembering that we were taking reading, serial number, initial reading, serial number, initial reading, final reading and delta V KMnO4। ये निकाल रहे थे ना हम पहले,
तो मान लेते हैं कि ये 1 है, तो 0 था, फाइनल रीडिंग आया 19.75, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19.75। फिर आया सेकेंड 0, यहाँ पे लिया 19.75 और फिर 19.75 कंज्यूम हुआ, so next will be 39.50, difference will be 19.75. Then again we will start with 39.50 and we will get 59.25. So again 19.75. Fourth reading, or we have got 3 concordant reading now, so we can use this concordant reading here. Okay, but say in case of AMnO4, mass of A was equal to, say, A plus mass of MnO4 was 119. This we can calculate because it is known to us. Can be written as given mass, okay, say given mass is equal to 1.6 gram dissolved in 1 liter divided by 1 by 5x is the molarity. So if we put the value of x here from this, so A plus 119 will be equal to 8x, and the value of x would be 19.5 will be equal to 156. So we can write A is equal to 156 minus 119. Now see, someone might have got 19.75. Someone might get 19.5. If someone gets 19.5, then they will get a near value. Okay. So in that case, you have to understand that there is no element in S block which is having atomic number 37. So you have to again, maybe you have to recheck whether you have put the same value or not, or titration is correct or not. Alright. And then you have to readjust your reading. Alright, I said readjust. Take care. Now, instead of 19.75, if I take 19.5, you see that I am getting 37. But if I take the exact value 19.75 here, 75, then I will get 158. And then
this will become 158, and this will become exactly 39 gram, which will correspond to potassium 39. Now for the sake of your practice, what you can do is you can estimate or you can guess or you can calculate what could be the possible reading with the same setup. What could be the burette reading with the same setup, same standard solution given to you if we would have taken not potassium but sodium. अगर हम पोटेशियम ना लेके सोडियम लेते, ठीक है, तो यहाँ पे 23 आना चाहिए था. तो अगर यहाँ पे 23 आना होता तो फिर हमारा एक्सपेक्टेड ब्यूरेट रीडिंग क्या होना चाहिए. तो क्या हम इसको बिना एक्सपेरिमेंट किए कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप ये बिना एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट कर ले तो ये आपके लिए बहुत सहायताजनक होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है अपना, ठीक है, उसको हम बस ऐसे ही मान नहीं सकते कि रिजल्ट आ गया तो आ गया, ठीक है. हो सकता है कि कई सारे कारण से आपका रिजल्ट गलत आ रहा हो. तो मैथमेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इनकेस अगर ये पोटेशियम नहीं है, सोडियम है, तो 23 होना चाहिए, ठीक है. अब रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके पर मैग्नेट तो आपको देंगे नहीं कोई, ठीक है, और सोडियम पर मैग्नेट भी अवेलेबल नहीं होता है लैब में, पोटेशियम पर मैग्नेट ही अवेलेबल होता है, ठीक है. फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए वंस यू कैन थिंक दैट नहीं 39 नहीं है, सोडियम है 23. तो अगर सोडियम है 23 तो हमारा ब्यूरेट रीडिंग क्या होना चाहिए था, ठीक है. तो इस प्रकार के मैथमेटिकल ट्रिक को हम कहते हैं बैक कैलकुलेशन, ठीक है. इस प्रकार के बैक कैलकुलेशन को करके ही कई सारे प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है. अब अगर इस पूरे प्रॉब्लम को अगर इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है. ऑलराइट, दिस इज द टास्क फॉर यू. अभी हमने क्या किया, हमने फाइंड किया एटॉमिक नंबर ऑफ एन अननोन एलिमेंट विच फॉर्म्स परमैंगनेट by titrating it against more salt, by titrating it against standard M/20 more salt solution, all right, and we found out the atomic number of the unknown element which forms the permanganate, ठीक है. हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि जो अननोन एलिमेंट है परमैंगनेट के साथ उसका एटॉमिक नंबर क्या है. उसका सैंपल वेट कितना लिया था हमने, 1.6 ग्राम इन 1 लीटर, 1.6 ग्राम इन 1 लीटर लिया था, ठीक है. इन सबको आप जोड़कर एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है. मेरे वीडियो के एंड में, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन है तो सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता था, ठीक है. बट उसको देखने से पहले एक बार आप खुद क्वेश्चन बना के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन कैसे की जाती है. एग्जामिनर जो है वो टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं आपको, बैक कैलकुलेशन करने का तरीका बताया है, आपके जो रीडिंग आते हैं सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया है, ठीक है. इसलिए एक थोड़ा डिफरेंट टीचिंग वीडियो है ये, ऑर्डिनरी वैसा नहीं है कि जैसा हो रहा है वैसा दिखा दिया गया आपको, ठीक है. मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक्स दिखाया है, प्रोफेशनल ट्रिक दिखाया है कि अगर मान लीजिए कि आपकी वो सही रीडिंग नहीं आ रही है जो आना चाहिए, तो उस समय आप मैथमेटिकली कैसे आप बैक कैलकुलेट करके खुद को चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है. जबरदस्ती का हम गलती नहीं कर सकते ना कि नहीं मेरी जो रीडिंग आई है यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 25 ml रीडिंग आ जाए किसी गलती के कारण, बाय मिस्टेक आपका 25 ml रीडिंग आ जाए. कैसे रीडिंग आ सकती है 25 ml, कि MnO4 डाइल्यूट हो जाए, किसी ने पानी डाल दिया, किसी ने थोड़ा गिरा दिया, ठीक है, एसिड जो आपने डाला था बहुत ज़्यादा डाइल्यूट था, ठीक है, किसी भी कारणवश ब्यूरेट जो है वो लीक कर रहा था, ठीक है, ब्यूरेट में वाटर बबल था, इसके अंदर बबल रह गया होगा, ठीक है. ये सब जो है प्रिकॉशनरी रीजंस कहीं फॉलो नहीं हो पाए तो मिस्टेक हो गया आपसे. तो क्या आप उसी 25 ml को यहाँ पुट कर देंगे, वो 25 ml यहाँ पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा तो क्या वो पोटेशियम का एटॉमिक वेट होगा, नहीं होगा ना. तो उस समय आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए, ठीक है, कि किस प्रकार से हम जो मेरी रीडिंग है उस रीडिंग को हम अटेस्ट करें कि ये सही है कि नहीं है. अटेस्ट करना मतलब सत्यापित करें, ठीक है, टू मेक इट
टू बी अंडरस्टूड टू बी ट्रू, ठीक है, जो आपके वॉल्यूम है के MnO4 को, ओके, जो वॉल्यूम के MnO4 कंज्यूम हो रहा है वो लॉजिकली, मैथमेटिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली सही होना चाहिए. Only because there is possibility of human error, there is possibility of error in the instrument. आप मिस्टेक कर देंगे, ये चलेगा नहीं, ठीक है. इसलिए मैंने आपको बैक कैलकुलेशन भी बताया है. तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझिए इस चीज़ को, ठीक है. ये क्लासरूम सिचुएशन में बताते हैं, आप लोग भी सोचते हैं चलो ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिख लेंगे, ये रीडिंग होगा, ये आंसर आ जाएगा, काम चल जाएगा. काम चलता आया है, ठीक है, वैसा काम मत चलाइए. लर्न वट एवर यू आर लर्निंग टू द पॉइंट एंड अप टू द एक्सटेंट अप टू विच इट इज रिक्वायर्ड टू बी लर्नड, ठीक है. इसलिए मैंने इतना थोड़ा टाइम दिया है इसके पीछे. इतना कुछ करने के बाद अगर आपसे इतना पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड व्हेन यू आर गिवन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, आराम से निकाल सकते हैं. अगर कोई आपको पूछे कि find out the purity of more salt given to you whose sample weight is this and you are provided with standard solution of KMnO4, तो भी आप निकाल लेंगे, ठीक है. तो टाइट्रेशन करना तो इतना तक तो ईजी हो गया. एक बार हमारे पास वॉल्यूम आ जाए और एक बार हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाए और एक बार मोलैरिटी निकाल लें. मोलैरिटी निकालने के बाद तो फिर मोल कंसेप्ट है, स्टोइकियोमेट्री है, प्योरिटी निकालना, परसेंटेज निकालना, सिंपल मैथ्स है, ठीक है. तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन टाइट्रेशन, ठीक है. तो मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं ऐसे, जो कि क्रिटिकल भी हैं, आपके एज के अनुसार क्रिटिकल हैं, और ऐसे हैं कि जिससे आप इजी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, थैंक यू.